I hope so. Students in the class. Okay. So I just shared the slides. I think my Nargis or anyone can students can stay with me. Nimra, are you in the class? Yes, ma'am. Okay. So I just shared the slide. So you can tell me if there is any problem in slides or my voice. So you can tell me about that. Okay, ma'am. Okay. I just shared the slide with all of you. Yes, slide is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay. So in today's class, we will discuss about the essay session firstly. So you can check here. Okay, it's a Persian composition slide. Okay, no issue. We discuss about this first. Persian composition in this class and in this paper, you have to prepare a lot of section of grammar. You know about this if you go through the syllabus of FPSC. How many students are there who's go through the syllabus of FPSC? I think a lot of I have also go through. Okay. So this is very important. You have to go through the syllabus of FPSC because you can take the idea what you have to prepare for the Persian composition paper. So first of all, there is a synonym antonyms, and it will be covered in our Persian composition session. We discuss vocabulary with different way, with the very interesting way. My students also, I think, are available in you can say appear in this class. Banusadi, are you there? Yes, ma'am. So you can tell me about how we cover our vocab. If you want to share your views with students. I just want to say that for the speech that most of the members and it will take 2 to 3 days to cover. Your voice is distorted, but no issue. I will explain it. Dear, we cover vocab with different way, with root word, with mnemonics, and I make a story with that particular word, and it will be remembered to my student for a long life. So it will be very easy to learn vocab. And Prezi writing rules we will discuss in the last class. It will be very good for you because for Prezi writing you have to need appropriate grammar. Your grammar will be correct, your sentence structure will be correct, your tenses will be correct. Then we will discuss about the Prezi writing. So in the last class we will discuss about the Prezi writing comprehension. It's the second last class of your session. And if I talk about the translation, so we will discuss about each and everything, tenses, how you can convert your sentence structure from one direction to another direction. So translation also cover grammar, sentence correction, each and everything will be covered in our session. So we start our session step by step, and I told you just a minute. There is a myth in Persian composition session. There is a big myth, and what is that myth? I just tell you.
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा कि आपकी जो बेटा प्रेसियन कंपोजिशन है उसमें आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर आप प्रेसियन पास नहीं करते हैं तो आप इस काबिल नहीं है कि आप प्रेसी का पेपर पास आउट कर सके। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने ये सुना है कि अगर आपकी प्रेसी पास नहीं होगी तो आपका जो पेपर है प्रेसी का वो भी पास नहीं होगा। इज देयर एनी स्टूडेंट? लेकिन ये बहुत ही बड़ी मिथ है, आपने इस मिथ को अप्लाई नहीं करना, बहुत ही गलत आपके साथ ये कहने कमिटमेंट की जाती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर को आपका पता चल जाता है अगर आपकी प्रेसी अच्छी नहीं है, सो इट्स मींस दैट कि आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं है और आपकी राइटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी अगर प्रेसी अच्छी नहीं है तो पूरे का पूरा पेपर जो है वो आपका फेल हो जाएगा। इट डजंट मीन दैट। तो आप लोगों ने काम करना ये होता है, हमारे स्टूडेंट जो है वो करते क्या है, वो 80% अपना जो कंसंट्रेशन है वो प्रेसी राइटिंग पे लगा देते हैं और 20% लेटर ऑन। जो बाकी आपका 80 मार्क्स का सिलेबस है 20% आप रिजर्व करते हैं दूसरे मींस के आपकी जो ग्रामेटिकल चीजें हैं जिसमें सेंटेंस करेक्शन है, ट्रांसलेशन है, पंक्चुएशन है, उन चीजों पे आप 20% टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं। ऐसा है? यस मैम। यस मैम। अपना ज्यादातर सेशन जो है वो एग्जैक्टली। और ये चीज मैंने आप लोगों को लास्ट जो हमारी एरर डिटेक्शन की क्लासेस थी, अभी मेरा जो रिसेंट बैच खत्म हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि वो ही चीजें एग्जामिनर आपकी सेंटेंस करेक्शन में बार बार पूछ रहा है जो हम बेसिक ग्रामर से पढ़ के आए हैं। सो इट्स मींस दैट कि आपको अपनी बेसिक पहले कवर करनी है और उसके बाद आपने एडवांस लेवल पे जाना है। बोथ साइड्स विल बी कवर इन आवर सेशन, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, तो हमने 80% टाइम उस पर कंज्यूम नहीं करना। हम हर उसके जो क्राइटेरिया है, जो आपके सिलेबस है एफपीएससी ने दिया, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू देंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? तो ये बात सबको क्लियर है। अभी बेटा आप लोगों के सामने मैं चीजें डिस्कस करती हूँ। आपके पास सबसे पहले प्रेसी राइटिंग का ऑप्शन आता है इन योर सिलेबस। 20 मार्क्स की आपकी प्रेसी राइटिंग है जिसमें से 5 मार्क्स आपके टाइटल के होते हैं और 15 मार्क्स आपकी प्रेसी के होते हैं। प्रेसी राइटिंग मैंने अपने बच्चों को अभी लास्ट वीक में ही डिस्कस की है। बहुत ही सेगमेंटेशन करके आपको सिखाई जाएगी, बहुत ही कह लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक एक सेंटेंस की, एक एक थॉट्स की मैं आपको प्रेसी राइटिंग करना सिखाऊंगी कि कैसे आप प्रेसी को एवेल्युएट कर सकते हो। खुद भी अपनी प्रेसी को चेक करके कुछ रूल्स एंड कुछ डूज एंड डोंट्स है, इंशाल्लाह वो प्रेसी के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। रीडिंग कंप्रीहेंशन है, बहुत सिंपल है, प्रेसी राइटिंग से लिटिल बिट ये सिंपल होता है। इसमें भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्रीहेंशन में क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उनको क्वेश्चन की लेंथ का अंदाजा नहीं होता। ये सारी चीजें आप लोगों की कवर की जाएंगी। क्वेश्चन कितना होना चाहिए, राइट टू एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, वो सारी चीजें। और वोकैबुलरी अगेन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हम सिनोनिम, एंटोनियम्स, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें आप लोगों ने खुद भी करनी है, सोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्रुप के अंदर डाटा शेयर किया जाएगा। खुद भी जो मेमोराइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, जो ये समझते हैं कि यार वोकैब याद करना सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, उनके लिए हम वोकैब जो है वो डेली बेसिस पे आपके लेक्चर्स के अंदर 10 सेंटेंसेस जो है 10 आपके वर्ड्स मिनिमम कवर होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मेरी कोशिश ये है कि आपके 2000 से लेकर 2023 तक जितने भी अभी पास पेपर आ चुके हैं, इसमें से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊं, जहां पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इतने सारे पेपर्स करके 23 एग्जाम्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, सो यू आर एबल टू अटेम्प्ट द पेपर। आपके ये 10 मार्क्स, मैं इनको बेटा पैक्ट मार्क्स कहती हूँ, जो आपके सेंटेंस करेक्शन की है। मैं अभी आप लोगों को एक दफा सिलेबस डिस्कस कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने किन किन चीजों पे कितना एम्फसाइज करना है, हाउ यू कैन प्रिपेयर प्रेसी एंड कंपोजिशन एंड हाउ यू कैन अटेन 70+ मार्क्स इन योर प्रेसी पेपर। Okay, you also share these slides in PDF? Yeah, of course. Yeah, of course. I think, Suman, you are my paid student. Yes. Yes, so definitely I will share in your group. Don't worry about that. Thanks a lot. Uh,
सो डियर हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंस कलेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि हम ये कवर करेंगे। और सेंटेंस कलेक्शन बेसिकली आती कहाँ से? आपकी ग्रामर में से आती है, ग्रामर के रूल्स में से आती है। एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब का यूज किया गया होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो ये चीजें हमने स्टार्ट में पढ़नी है, ठीक है। आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत डिटेल में करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके पास ग्रुपिंग ऑफ वर्ड बेटा 10 मार्क्स के आते हैं। अब ये एक ऐसा सोर्स है, अगेन आपके पास फैक्ट मार्क है, आप लोग नोट डाउन करते जाए। अगर इफ यू हैव पेन और पेपर, सो यू कैन नोट डाउन 10 मार्क्स आपके ये फैक्ट मार्क्स है सेंटेंस करेक्शन के। मैं इनको फैक्ट मार्क्स क्यों कह रही हूँ? अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन अचीव 10/10। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनी वन स्टूडेंट। मैं एवरी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एवरी स्टूडेंट भी इनमें 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हैं आफ्टर माई सेशन, इंशाल्लाह। उसके बाद ग्रुपिंग वर्ड्स की अगर बात करूं, पेयर ऑफ वर्ड्स, सोर्स मैं आपको बता दूंगी। अगर उस सोर्स से आपने ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, जिसको हम पेयर ऑफ वर्ड्स बचपन में भी करके आए हैं, वो अगर आपने तैयार कर लिए, एक ही वर्ड के दो, एक्सपेक्ट और एक्सपेक्ट, ए से भी बनता है, ई से भी बनता है, दोनों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो वो अगर आपने वहां से तैयार कर लिए तो बेटा आपके 10 मार्क्स ये भी आपके पैक मार्क्स में आ जाएंगे, नो इशू। और ये कैसे करने हैं? ये आपने डेली इसका एक टाइम रखना है, हाफ एन आवर आप रख सकते हो इसमें, या 1 आवर आप कंज्यूम करोगे। किसके लिए? आप वोकैब के लिए, पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए, प्रेपोजिशन के लिए। सोर्स आपको पीडीएफ बुक्स जो है आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। 5 डेली करना चाहो कर सकते हो। किसमें क्या कैपेबिलिटीज है वो अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई 10 कर सकता है, कोई 15 कर सकते हैं, ऑन योर कैपेबिलिटीज। उसके बाद अगर मैं बात करी पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास आ गए, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, अच्छा ये रिपीटिशन है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का पैसेज भी है, आई थिंक यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ट्रांसलेशन का पैसेज आपके पास आता है। अब ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करने की ही जरूरत है। ट्रांसलेशन अगर मैं आपको टेंसेस करवा दूंगी ना, तो ट्रांसलेशन इज ऑल अबाउट योर टेंसेस। अगर आपके टेंसेस पे कमांड है, सो यू कैन अटेम्प्ट योर ट्रांसलेशन पैसेज। किस तरह से? आपके क्या ट्रांसलेशन में पेंटेंसी ही होती है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट दिस? Sorry ma'am, can you repeat the question? ट्रांसलेशन में बेटा आपने जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, क्या टेंसेस का क्वेश्चन नहीं है वो आपका? बहुत है, और उससे सही पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो कहाँ एंड हो रहा है, उर्दू का सेंटेंस। So it will determine कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बेटा वो इसमें जज किया जा रहा होता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। और ट्रांसलेशन कभी भी, एक चीज मेरी आप लोगों ने माइंड कीपिंग योर माइंड, कि आप लोगों के जो ट्रांसलेशन है ना वो कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होगी। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड टू वर्ड, ठीक है। वो हमेशा अकॉर्डिंग होती है आपके लिटरेरी, कॉन्टेक्चुअली आपने इसको करना है, कॉन्टेक्चुअली, ठीक है। कॉन्टेक्चुअली आपने इसको, वेरी गुड, यस, इडियोमेटिक भी आप कह सकते हैं। कॉन्टेक्चुअली थोड़ा आपके लिए ज्यादा बच्चों के लिए इजी रहता है। इडियोमेटिक वे में अगर आप करते हो तो कुछ बच्चों को इडियम्स नहीं आते, तो वो कहते हैं मैम हम क्या करें। डेफिनेटली यहाँ पे इडियोमेटिक वे में भी मुराद ये नहीं है, इट डजंट मीन दैट कि आपने इडियम्स को यूज करके ट्रांसलेट करना है, लेकिन कुछ बच्चे इसका मतलब ये ले जाते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्चुअली मतलब बामुहावरा जो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उसका मतलब समझ में आना चाहिए, तो वो बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्टली, आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक हो, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन ठीक हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है। You know about this with the help of conjunction. Yes, you can use conjunction, you can use comma, you can use semicolon, Punctuation. यस, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि एक अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसको आपने कैसे कंबाइन करना है। ये सारा स्ट्रक्चर ग्रामर का है, और ये आपको हेल्प आउट करेगा ना सिर्फ ग्रामर में बल्कि आपके बाकी 10th एग्जाम्स में भी और आपके ऐसे में भी। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं ठीक है तो कभी भी आप ऐसे क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कुछ फैक्ट्स मार्क्स आप लोगों को बता देती हूँ, यू कैन नोट इन योर नोट्स। सबसे पहले आपके पास बेटा फैक्ट्स मार्क्स आ जाते हैं सेंटेंस करेक्शन के, ठीक है, 10 मार्क्स सेंटेंस करेक्शन के, ठीक हो गया। ये आपके, आप खुद यहाँ पे चाहे पूरा लिख लें, इट्स 10 मार्क्स। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाते हैं प्रेपोजिशन, यस डियर, Idioms. प्रेपोजिशन। उसके बाद इसके भी आपके पास 10 मार्क्स आ जाते हैं। इडियम्स या आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स, इनमें से एक ही आता है, इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स, जिसको हमने अभी आपका देखा भी है। Ma'am, idiom
इडियम्स का बेटा ज्यादा आएगा नहीं, चांसेस ज्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स के ही होते हैं, लेकिन कभी कभार इडियम्स भी आ जाती हैं। इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के भी 10 मार्क्स है, सोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप खुद देखिएगा, बहुत सारे बच्चे बेटा 99%, मैं खुद नहीं कह रही, एग्जामिनर की रिपोर्ट उठा के देख लो, 99% बच्चे जो है वो ऐसे और प्रेसी में फेल होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस फैक्ट से वाकिफ भी होंगे, ऐसा है? यस मैम। ठीक हो गया? आपके पास सेंटेंस करेक्शन होगी, प्रेपोजिशन हो गया, इडियम्स होगी, इसके अलावा पंचुएशन आती है। पंचुएशन बहुत सिंपल है, आपको एक पैराग्राफ सा दिया गया होगा और उसमें कोई भी डॉट, कोई भी कैपिटल वर्ड्स नहीं है, यू हैव टू रीड इट, और आपको उसमें पंचुएशन होती क्या है, डॉट हो गया, कैपिटल वर्ड्स भी करने हैं आपने कॉमा लगाना है, आपने सेमीकोलन लगाना है, स्टॉप, एग्जैक्टली। तो आपने ये सारी चीजों को यूज करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजों को यूज करके आपने इसको कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल है। 5 मार्क्स इसके आगे 10 एंड 35 मार्क्स हुए, 10 मार्क्स और है, मैं कुछ मिस कर रही हूँ। और क्या क्या चीजें थी बेटा? सेंटेंस करेक्शन है, प्रेपोजिशन है, ट्रांसलेशन के पैक मार्क्स नहीं आ सकते, इट कांट बी पॉसिबल। कन्वर्जन ऑफ टेंसेस आई थिंक, कन्वर्जन ऑफ टेंसेस बेटा पीएमएस में आता है, इसमें नहीं आएगा। मैम ग्रुपिंग वर्ड्स, यस, ग्रुपिंग वर्ड्स तो हो गया ना, इडियम्स ग्रुपिंग वर्ड्स हो गया है। इसके अलावा एनालॉजी भी बेटा वोकैबुलरी में आती है। अच्छा, वोकैब का हम कर लेते हैं, हम वोकैब यहाँ पे मेंशन करते हैं। वोकैब के अंदर बेटा 10 मार्क्स लेना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे बच्चे जो है 18 मार्क्स तक भी अचीव करते रहे हैं। हमारी लास्ट एक बच्ची थी निम्रा, निम्रा एक इस क्लास में भी है, एक पहले भी हो चुकी है, अस्मा भी थी, उन्होंने 20 में से 18 अपने हर वन पेपर में किए हैं, और उन्होंने हमारा ग्रामर का जो बैच है वो ज्वाइन किया था। 18 मार्क्स को कैच करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है वोकैब में से, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 10 का ही ऑप्शन रखती हूँ। तो 45 मार्क्स आपने, ये ऐसे मार्क्स हैं जो कि आपने आसानी से अचीव कर लेने हैं। और बाकी आपका बचता है बेटा आपका ट्रांसलेशन पैसेज, उसमें से आप कितनी भी अच्छी लिख लेंगे, 15 आउट ऑफ 10 आती है, बहुत अच्छी भी होगी, ठीक है। प्रेसी और कंपोज जो आपका है, प्रेसी मोस्टली जो है जितनी भी अप टू द मार्क होगी ना, जितनी भी अप टू द मार्क हो बेटा 10 to 12 के दरमियान ही मार्क्स देता है, कभी भी पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। ये सीएसएस का रूल है कि एक लिमिट होती है आपको मैक्सिमम मार्क्स देने की, ठीक है। सारा कुछ ठीक हो, एग्जैक्टली, आपका सब कुछ ठीक भी है तो फिर भी आपको 10 to 12 मार्क्स मिलेंगे, कभी भी सीएस में 100 आउट ऑफ 100 आपने नहीं देखा होगा। ओके, ठीक है। सो इट्स अ रूल, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पे राइटिंग हर चीज एक डॉट के भी मार्क्स डिडक्ट हो रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स डिडक्ट हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब उसके बाद हमारे पास प्रेसी एंड कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, प्रेसी भी आप कितनी भी अच्छी कर लो, यू कैन गेट 15 मार्क्स, और ये मैं वो बता रही हूँ जो आइडियल है। अगर आपके 15 मार्क्स आ जाते हैं तो इट्स मीन्स दैट कि यू अचीव योर डिजायर्ड मार्क्स in pressing, and 15 you can fix for the comprehension। तो 45 मार्क्स बेटा मैंने आप लोगों को ऐसे बताए हैं, आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 33? No, it's not 33. For compulsory subject it's 40. Okay. Essay, Pressy, Islamiyat, Pakistan Affair, Current Affair, General Science and Ability, you have to achieve 40 marks, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर जी बेटा आउट ऑफ 100। ओके, लेकिन पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बेटा मार्क्स जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। मर्ज किस तरह से? इन द सेंस ऑफ जीएसए, आप इन तीनों में से अगर इसमें 80 ले लेते हो और इनमें आपके 20 भी आ गए हैं, तो एक एवरेज आपके पास आ जाएगा 120 का, ऐसा है? ठीक है। और आपने ये तीनों पास कर लिए। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनकी करंट अफेयर में 10 मार्क्स हैं और वो टॉपर है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसमें 80 ले लिए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपने जीएसए पे प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ये मैंने एक एडिशनल आप लोगों को आज की क्लास से हटके वो
एडवाइस दे रही है, ठीक हो गया। तो 45 मार्क्स बेटा मैंने पैक्ड मार्क्स बताए हैं प्रेसी के लिए, अगर आप इसको अचीव कर लेते हो सो इट्स मीन देन कि आप पास हो। और प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है, मेरा हरगिज कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने प्रेसी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रेसी की प्रैक्टिस आपको बकायदा करवाई जाएगी, वो आप करोगे और इंशाल्लाह 10 to 15 मार्क्स आप उसमें से भी ले लोगे तो आप 50 प्लस इजीली ले सकते हो, ऐसा है कि नहीं है? Yes. और जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करते हैं टाइम पे, एवेल्युएशन करवाते हैं, डेफिनेटली वो 70 प्लस भी अचीव कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली वो आपको पे बैक करता है, ठीक है। हार्ड वर्क करें, अपने ऊपर बिलीव रखें, जो स्ट्रेटेजी आपको बताई जा रही है उस पर इंप्लीमेंट करें। सबसे बड़ा इशू ही ये है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली इन पाकिस्तान की स्टूडेंट्स के साथ, ये है कि वी मेक अ प्लान बट वी कांट फॉलो इट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? आज की क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि वो हर दफा प्लान तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है? Is there any student? It's not possible to follow the 100% of the timetable. It's a 75% follow हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्या 70-75% आप फॉलो कर लेते हो। और मैंने अपने बच्चों को एक ट्रिक भी बताई थी अभी जब हमने 3 मंथ्स का सेशन किया था कि आपने जो प्लान बना लिया ना, अगर कुछ भी उसमें से रह गया है सो जस्ट स्किप इट। आपने कल का प्लान पिछले प्लान की वजह से खराब नहीं करना। एक बेस्ट टिप है आप सबके लिए कि अगर आपने कोई प्लान बनाया, आपने कहा मैंने आज 10 का ये पेयर ऑफ वर्ड करने हैं या जो भी आपने सजेस्ट किया, अगर आपने 10 नहीं 5 किए तो पिछले 5 को रहने दो, अगले 5 से स्टार्ट करो। इससे आपके अंदर एक फियर ऑफ लॉस आएगा कि यार मेरे पे बर्डन पड़ता जा रहा है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होगा, सब कॉन्शियस, और आप अपना काम आज के आज जो भी आपने डिसाइड किया उसको पूरा करना शुरू हो जाओगे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ बर्डन। So I hope so प्रेसी एंड कंपोजिशन का आपको क्लियर है। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेशन, आप लोगों की क्लासेस बेटा मंडे टू फ्राइडे हुआ करेंगी 6 PM, टाइमिंग यही है, 6 to 7 PM हमारी क्लासेस होती है। If you have any question about Prezi and composition, you can ask. No, ma'am, there is no question. Okay, then we will just move towards our essay session. I don't know this. It's not essay class. Okay, I just shared the slide with you. There is a yes, this one is. Okay, students, you can tell me about. आप लोगों ने अभी तक कुछ प्रैक्टिस किया है इंग्लिश ऐसे राइटिंग के अकॉर्डिंग, और कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल जीरो से हैं? नो डाउट कि मैं जीरो से ही स्टार्ट करवाऊंगी। आई जस्ट जनरली आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, डोंट वरी, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाऊंगी। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने एटलीस्ट सिलेबस वगैरह देखा है, जिन्हें पता है कि ऐसे होता क्या है। अच्छा, ऐसे का जो बेटा तरीकाकार है वो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो कंडक्ट की जाती है ऐसे टाइप्स के ऊपर। अपना जो सिलेबस, जो हमारा सेशन है वो कैसे चलेगा ये मैं थोड़े लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एग्जामिनर डिमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई भी सेशन लेने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो सेशन या क्या वो मेंटोर आपकी एग्जामिनर डिमांड को फुलफिल कर रहा है। सो देन गो फॉर that session with that mentor, go for that। लेकिन अगर कोई भी मेंटोर आपकी एग्जामिनर डिमांड ही आपको नहीं बताता और उसकी पैटर्न के ऊपर आपको नहीं लेकर चलता, सो इट्स मीन कि वो टाइम वेस्ट है। नॉट ओनली द टाइम वेस्ट बट आल्सो योर मनी वेस्टेज। सो कीप इन माइंड कि आपकी एग्जामिनर डिमांड को अंडरस्टैंड किए बगैर आप कभी भी ऐसे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और ऐसे की उस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे जो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप कैसा होना चाहिए। सो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने कभी एफपीएससी का सिलेबस अगर पढ़ा है तो वन और मोर ऐसे
यू कैन सी। Yes, ma'am. अभी हमारे पास चॉइस आ रही है कि हमने सिर्फ एक ऐसे लिखना है। आने वाले वक्त में बेटा आप लोगों के पास एक से ज्यादा ऐसे की भी डिमांड कर सकता है एग्जामिनर, सो कीप इन योर माइंड। अभी तो हम एक ही ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उसने मेंशन किया हुआ है तो वो कभी भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक विल बी गिवन। तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे में सबसे ज्यादा चॉइस होती है, किसी भी सीएसएस के और पेपर में इतनी चॉइस नहीं है। विदाउट दिस फैक्ट a lot of student, even 99 student fail in this essay paper. Yes. How many options are given? Beta 10 out of 1. Only one out of 10? Yes. Okay. So it's a huge choice, but a lot of that huge choice, variety of choice, students fail in essay paper. Why? Because they don't understand the structure of essay, the demand of essay, and they cannot able to interpret the statement of the essay. आप लोगों को बेटा ये सारी चीजें करवाई जाएंगी जी। We should see that how material we can add in that topic. So नहीं बेटा मटेरियल भी रिक्वायर्ड नहीं, मटेरियल भी उस सेंस में चीजें ओवरकम की जा सकती हैं, इधर उधर हो सकता है। इफ यू डोंट हैव मटेरियल, इफ यू डोंट हैव फैक्ट्स एंड फिगर, तो कहीं ना कहीं अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, अगर आपकी ग्रामर ठीक है, तो आप लोग करते हो। अब हमारे पास ऐसे जब एवैल्यूएशन के लिए आते हैं, बच्चों की बहुत बेसिक मिस्टेक्स नहीं करिए, और एक ही मिस्टेक वो फिर बार बार यूज कर रहे होते हैं। एक पूरे पेज पे अगर 5 से 6 दफा सर्कल बन जाते हैं ना, तो एग्जामिनर इस तरह के ऐसे को पास नहीं करता। एक ही मिस्टेक, ठीक है। अब कुछ जगह है जहाँ पे आर्टिकल दा यूज नहीं करना, वो दा आर्टिकल बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें वो फिर एग्जामिनर उस स्टेज पे आके वो एक्सेप्ट नहीं करता। मटेरियल आपको, डोंट वरी अबाउट द मटेरियल, आप लोगों को रिकमेंडेड रीडिंग जो है वो साथ ही साथ दी जाएंगी। आर्टिकल्स वगैरह जो आपके इंपॉर्टेंट ऐसे में आ सकते हैं, आई विल सेंड यू इन योर ग्रुप। तो मटेरियल कहाँ से लेना है उसकी टेंशन किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जामिनर की डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स आर expected to reflect comprehensive and research based knowledge। ये वो डिमांड है जो आपने अभी बात की है बेटा, कि आपने जो भी टॉपिक चूज करना है, आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव और साथ ही साथ सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। यू हैव टू नो वेयर यू गेट एग्जैक्टली, यू कैन से कोटेशंस, यू कैन से अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर है, आपने लिखा है कि पाकिस्तान रैंक 146 इन जेंडर डिस्पैरिटी गैप, तो आपके पास क्या आएगा 146 अकॉर्डिंग टू, आप किसके सर्वे के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक है, इकोनॉमिक फोरम है, यू कैन टेल द एग्जामिनर। आपने कह दिया उसने मान लिया, ऐसा नहीं होगा। आपने जहां से स्टडी किया है, जिस भी आर्टिकल से कोई भी इंफॉर्मेशन लिया, यू हैव टू मेंशन दैट रेफरेंस, दैट सोर्स। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। सो ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, ये वो चीजें हैं जो मैं आप लोगों में बेटा डेवलप करूंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आर्टिकुलेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन, आपकी टेक्निकल ट्रीटमेंट और स्टाइल ऑफ इंग्लिश राइटिंग विल बी एग्जामिन। आर्टिकुलेशन सबसे एंड पे, मतलब आपकी जो राइटिंग है ना, ये सबसे एंड पे आई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जी बेटा। नो, इट्स डजंट मैटर, आप ज्वाइनिंग लिखें, आप अटैलिक लिखें, आप कोई भी राइटिंग के फॉर्मेशन को यूज करें, बट इट कैन बी रीडेबल। ओके। Is there any writing pattern that is more appreciable or acceptable? I don't recommend italic writing। मैं कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सीधा सीधा लिखो, साफ साफ लिखो, डिजाइनिंग करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जामिनर जो है आपकी नीटनेस की मार्क्स देगा, आपके क्लियर राइटिंग की मार्क्स देगा, आपकी जो आप कह सकते हैं ना कि डिजाइनिंग की मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो आपकी क्लियर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो, एग्जामिनर को समझ आए, और बहुत छोटा फाउंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत स्मॉल राइटिंग करते हैं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आपके पास जो राइटिंग का एक मिनिमम मीडियम साइज है, अब वो होना चाहिए कि एग्जामिनर इजीली इसको रीड आउट कर सके। मैम ऑलवेज रिकमेंड यस, सिंपल। और आपकी जो है कहने की अटैलिक वगैरह तो बिल्कुल भी रिकमेंड ना करो, क्योंकि उसमें होता ये है कि हम जब अटैलिक लिखते हैं ना, जस्ट लाइक
तो ये थोड़ा इस वजन में आ जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो आपकी राइटिंग जो है वो लाइन के ऊपर नहीं आ रही, थोड़ा तिरछा जिसे आप कहते हैं वो आता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखें ताकि आप लोगों की राइटिंग, मैं आप लोगों को सैंपल राइटिंग का दिखा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पे हमने एग्जामिनर की डिमांड को अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि एग्जामिनर ने जो अपने एग्जामिनर रिपोर्ट पेश किया, और ये एक एग्जामिनर की रिपोर्ट नहीं है, 2017 से लेकर 2020 या 21 तक हमारे पास जितने भी अभी तक रिपोर्ट आई हैं वो उन सब से, और 4 डिफरेंट एग्जामिनर्स हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है। 4 डिफरेंट एग्जामिनर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजें सामने रखी हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं हर साल ऐसे के अंदर। सो हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे जो हमें ऐसे में नहीं करना। सो व्हाट वी हैव टू अवॉइड इन आवर ऐसे, की इशू, रीजन ऑफ फेलियर। एग्जामिनर बताता है कि आपके जो की इश्यूज है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं उसमें क्या क्या रीजंस है। सम बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक, सो कीप इन mind if you make any spelling mistake in your essay, so it will be give any very wrong impression on your examiner about you, कि you are not capable, you are not eligible for this post. Got it? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है बेटा, आप इस कंपेटिटिव एग्जाम में जाके बच्चों वाली मिस्टेक्स करोगे तो एग्जामिनर बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगेन ग्रामर में हम इसको बहुत डिटेल में करते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा जो भी हमारे पास आते हैं उनसे यही रिकमेंड करती हूँ कि आप दोनों ही सेशन ज्वाइन करें। जो बच्चे सिर्फ ऐसे सेशन ज्वाइन करते हैं ना, वो ऐसे तो ज्वाइन कर लेते हैं, उनको स्ट्रक्चर पता चलता है, लेकिन उनमें ये इशू आ रही होती है, उनको पता नहीं होता कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है। अगेन ये चीजें ग्रामर में पढ़ाई जाएंगी, ये चीजें ऐसे सेशन में नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, ऐसे का बेटा अपना स्ट्रक्चर है, अपनी एक बहुत डिटेल क्लासेस होती हैं, तो ये चीजें ग्रामर में आती हैं। उसके बाद फोकस ऑन ग्रामेटिकल एरर, कि आपके पास ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह क्या है, ये सारे आपके ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट है। इररिलेवेंट एंड रिपीटेड, आपके पास आप कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं, आप आउटलाइंस में रिपीटेशन कर रहे हैं, तो एग्जामिनर्स को डायरेक्टली लिख देगा कि ये चीजें बार बार आप रिपीट कर। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ पंचुएशन, आपको पंचुएशन का यूज नहीं पता तो डेफिनेटली बहुत ही एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आता, मोस्टली आपका जो ऐसे है वो प्रेजेंट टेंस में अटेम्प्ट किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ प्रेजेंट टेंस, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस ही अगर आपका नहीं, एस और एस की मिस्टेक्स हो रही है, यू डज नॉट हैव अ आइडिया अबाउट the where you have to use s or es and where you don't have to use, so this is very basic mistake, और यही mistakes हम evaluate भी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स जब लिख रहे होते हैं तो वो बहुत ही फ्लुएंसी में लिख रहे होते हैं। आप कह लें कि उनमें थोड़ा होता है कि टाइम को भी कवर करना है, इवन के असाइनमेंट्स के अंदर वो ये गलतियां कर रहे होते हैं कि हमें पता है, लेकिन जब हम राइटिंग करते हैं तो ये गलतियां ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ऐसा है? यस मैम। ठीक है, आप कॉन्शियस में रह के नहीं कर रहे होते और आपसे अनकॉन्शियस ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस से ओवरकम की जा सकती हैं। सो ऐसे के लिए प्रैक्टिस 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 3P फार्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो बच्चे इस फार्मूले को इंप्लीमेंट कर लेते हैं वो इंशाल्लाह ऐसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कैन नेवर बी यूज्ड अलोन। डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारी ग्रामेटिक की चीजें। आर्टिकल का यूज नहीं पता, जहां पे आ यूज करना है वहां ए यूज कर देते हैं, जस्ट लाइक एंड यूनिवर्सिटी यूज किया गया होता है। You know, don't know about that. We don't use sound. Exactly. We can not use and with you sound. तो हमारे पास इस तरह की मिस्टेक्स भी देखने में आती हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाता है फॉल्टी स्ट्रक्चर, पुअर प्रेजेंटेशन, कैंडिडेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रामर की चीजों को मैंने इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किया, ग्रामर में डिस्कस हो जाती है वो, और बच्चों को पता है, कुछ बेसिक आइडिया भी होते हैं। आपके पास अगर एबिलिटी ही नहीं है कि आप अंडरस्टैंड कर सके अपने टॉपिक को, तो एग्जामिनर आपको किस चीज के मार्क्स देगा? मोस्टली उन स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स आते हैं। आपको बहुत सारी डीएमसी मिलेंगी, बाकी सारे पेपर्स में बच्चे पास है, अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन ऐसे में 0 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉपिक को ही अंडरस्टैंड नहीं किया। दे हैव नो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैं आपकी 2 से 3 क्लासेस की प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, कि आप लोगों में ये चीज इतनी प्रैक्टिकल हो जाए आप कि आप
ऐसे के टॉपिक को देख के आपको पता चल जाएगा, हम डाइसेक्ट करके उसको इंटरप्रेट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। बहुत मजे की इंटरेस्टिंग क्लासेस होंगी हमारी इस पे। ऑफन वर्ड लिमिट इज नॉट फॉलोड। हमने यूट्यूब पे देखा कि एक टॉपर है, उन्होंने 14 to 50 100 का ऐसे लिखा और वो पास हो गए और हम चल पड़े उनके पीछे। होते हैं सर? माइट बी होता है बेटा। और होता ये है कि हमने किसी की YouTube के वीडियो देखा तो हमने देखा कि भाई उस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को रूमर जो है ना वो करते हैं, और हो सकता है कि चलो उसने 1500 का ऐसे लिखा और वो पास हो गया। अब यहाँ पे मैं अपने बच्चों से हमेशा एक क्वेश्चन करती हूँ कि बेटा आपका फ्रेंड जा रहा था मोटरवे पे और वो 220 की स्पीड पे चला रहा था अपनी गाड़ी, बाय चांस उस दिन उसका चालान नहीं हुआ और आप जा रहे हैं 220 की स्पीड पे अगले ही वीक मोटरवे से और आप 220 पे चला रहे हैं, आपका चालान हो गया। सो यू कैन एबल और यू कैन इन दैट कंडीशन यू कैन आस्क और से टू द योर कांस्टेबल व्हाई यू कट माय चालान, कि आपने मेरा चालान क्यों काटा है, मेरा फ्रेंड अभी पिछले हफ्ते आया था आपने उसका तो नहीं काटा। यू कैन इन दैट पोजीशन आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। नो मैम, because we should know the rule. Exactly. Everyone know about the rules. तो आपने rules को follow करना है, ना कि आपने अपने friends के recommendation को। तो ये ही example आप लोगों के लिए थोड़ा clarity लेकर आती है कि आपको examiner ने बता दिया है कि उसको 2500 at least minimum और 3000 word का ऐसे चाहिए, तो आप examiner को follow करो ना कि किसी और को। और मेरा जो बेटा ऐसे है वो according to वर्ड लिमिट है। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपने इंट्रोडक्शन के इतने वर्ड्स लिखने हैं, कंक्लूजन के इतने लिखने हैं। यू डोंट नीड टू काउंट योर वर्ड्स। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस ही मैं उसी पैटर्न पे करवाऊंगी कि 2500 की जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा कि आपके पास आउटलाइन आर नॉट वेल डेवलप और रेलिवेंट। आउटलाइन पे बहुत प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ आउटलाइन सिखाए जाएंगे। आउटलाइंस के भी पैटर्न डिफरेंट है। सेंटेंस आपके पास जैसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आते हैं ना, यू नो अबाउट दिस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस? ऐसे के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, ऐसे के डिफरेंट टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव बानो सादिया, अपने स्टूडेंट से पूछूंगी तो पता है मुझे, आपको पता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, हाँ ये भी ठीक है। आपको डेफिनेटली ऐसे की डिफरेंट टाइप्स है, तो हम इनकी हर टाइप की आउटलाइन की डिफरेंट प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको बताऊंगी कि आपने एक्सपोजिटरी की आउटलाइन कैसे बनानी है, आर्गुमेंटेटिव की कैसे बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट की कैसे बनेगी, जिनको लिटरेरी ऐसे भी जाते हैं, और यही तीन ऐसे हैं जो मोस्टली सीएसएस में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ ऐसे ही है, उसी में मर्ज हो चुका है। अगर हम बात करें तो आपकी आउटलाइंस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे मेंशन भी है लेंथी आउटलाइंस विद वेरी लिटिल रेलेवेंट मटेरियल। आपने कीवर्ड्स को यूज करके आउटलाइंस कैसे बनानी है, कैसे आपकी आउटलाइंस कैची हो सकती है, क्या उसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह आउटलाइन में बता देंगे। एनी आर्गुमेंट नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग नीड स्पेसिफिक सपोर्ट जस्टिफिकेशन जस्ट लाइक कोटेशन, saying reference, example, facts and figures, arguments and compare and contrast। मतलब जो भी बेटा आपने वहां पे अपने arguments को build up किया है, you have to support your arguments with these kind of references। इनमें से कोई एक चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपने सारी लिखनी है। कहीं किसी पैराग्राफ में आप फैक्ट्स लिख सकते हो, किसी में कोटेशन, किसी में एग्जांपल्स। सो यू कैन पुश विद योर ऑप्शंस, जो भी आपको ठीक लगे। और सारे ही पैराग्राफ में एक ही चीज भी नहीं होनी चाहिए कि सारे पैराग्राफ को कोटेशन से भर दो, तो बहुत ही अजीब लगेगा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम टू टाइम पता चल जाएंगी। अगर हम अपने सेशन की बात करें तो हमारा सेशन बेटा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा, एक एक चीज पे बात की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन और मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है आपका। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऐसे हमारे पास आ जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ ऐसे। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे के लिए, वो आपको बताया जाता है क्या होगी, किस तरह से आप कर सकते हो, किस तरह से आपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है, व्हाट थिंग्स यू हैव टू अप्लाई टू सिलेक्ट अ टॉपिक, क्या आपने वहां पे स्ट्रेटजी को यूज करना है। और एक्सरसाइज करेंगे हम पास पेपर से, ठीक है। ये आपकी 2 से 3 जो है वो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है फ्रॉम द पास पेपर।
लॉजिकल सीक्वेंस मेथड आपको सिखाया जाता है कि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑन सीएसएस ऐसे। अगेन मैं जो भी चीज यहाँ पे आप लोगों को करवाऊंगी, मैं उसकी साथ ही क्लास में भी प्रैक्टिस करवाऊंगी और उससे रेलिवेंट आप लोगों को असाइनमेंट भी सॉरी एज यू नो के वेदर इफेक्टेड है सब, तो इस वजह से। उसके बाद थैंक यू, हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है बेटा आपके ऐसे के ऊपर। मतलब जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ क्लास में उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बल्कि साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर। और जब आप असाइनमेंट अवेल्युएट करवा लेते हैं, जो भी आपके एरर्स होते हैं वो आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया? सो आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। यस मैम। ओके। उसके अलावा हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग का मेथड आ जाता है। प्रैक्टिस विद अगेन सीएसएस ऐसे टॉपिक्स। करेक्ट आउटलाइन राइटिंग मेथड्स है, जिसमें हम आउटलाइन का मेथड डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन मेक रेलिवेंट आउटलाइंस। इंट्रोडक्शन राइटिंग मेथड आ जाता है, ये डिफरेंट इंट्रोडक्शन का सेम मेथड है, सारे टाइप्स ऑफ ऐसे में इसी को फॉलो किया जाएगा। अगेन प्रैक्टिस विद द सिलेक्टेड टॉपिक। उसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट का पूरा एक अलग से आपकी क्लास होती है। थीसिस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे के अंदर, कि थीसिस स्टेटमेंट को लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, क्या आपने फॉर्मेट यूज करना है। और ये थीसिस स्टेटमेंट एक हवा बनी हुई है, जैसे वोकैबुलरी हमारी बनी है ना प्रेसी एंड कंपोजिशन के अंदर, सेम लाइक दैट कि आपके ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखना बहुत ही इट्स अ वेरी हार्ड टू क्रैक द नट फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप जितना सिंपल थीसिस स्टेटमेंट जनरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, रेसिपी बता दी जाएगी कि जिसके अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर बेस्ट थीसिस स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। यस मैम, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? बेटा थीसिस स्टेटमेंट में आपने एग्जामिनर को अपने अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताना होता है कि आपने ऐसे को जो है वो आपने आपकी क्या परसेप्शन है, परसेप्शन है ऐसे की स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, आपका ओपिनियन होता है, आपका ओपिनियन एग्जैक्टली आपका अपना ओपिनियन है। ओके, लाइक फीडबैक और हाँ, थीसिस स्टेटमेंट में अगर मैं आपको बताऊं, देखो फर्ज करें आपके पास आ जाता है हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज, पास पेपर का ही है। अब आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपकी नजर में हायर एजुकेशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और आप किस तरह से काउंटर कर सकते हो। 3 सेंटेंसेस में in every essay will be asked. Exactly, it is compulsory in every essay. Okay. ठीक है, इसके बगैर तो ये तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, डोंट वरी, ये बहुत इजी है और आप लोगों को सिखाया जाएगा हाउ यू कैन राइट एप्रोप्रिएट थीसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर डिमांड। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है बॉडी स्ट्रक्चर कि बॉडी पैराग्राफ आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टेम्पलेट मेथड आ गया है, क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस। क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक्स आपको दिखाई जाएंगी, जिस तरह से अलग अलग आपके पास बॉडी पैराग्राफ आपको लिखने हैं, कंपेयर के आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास आर्गुमेंटेटिव आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपको बॉडी पैराग्राफ की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर एक ही है नो डाउट, लेकिन आप लोगों का जो टोन है, जो आपका एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। हमारी जो क्लासेस है बेटा आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी क्लासेस जो है वो चलती हैं 6 to 7। हमारी मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास हुआ करेगी ग्रामर की, और आपके पास जो आ जाते हैं सैटरडे संडे वी विल कंडक्ट ऐसे। वेडनेसडे यूर ऑफ। Wednesday off. If you have any query, any question about essay or Pressy, so you can ask me. No, ma'am, it was a good introduction. Good, thank you. Okay, if there is no any question, so we can wind up the class. If there is any new students who does not have my WhatsApp number, so you can tell me.
Yes, ma'am. Yes, ma'am, I am. Dear, you don't have WhatsApp number? No, ma'am. No, ma'am. It's my first. Okay, I just write here for all of you. You can, all the new students can contact me on my WhatsApp. 032384831041. बानो सादिया आप चैट में भी लिख दो बेटा. जी, थैंक यू जी, मैम. थैंक यू मैम. ठीक है. जो भी स्टूडेंट बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, कल तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा के कल 6 बजे से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट है. बिल्कुल फर्स्ट क्लास हम कल कंडक्ट करेंगे 6 बजे. तो आप लोग बिल्कुल अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के सेशन ज्वाइन करें कल से ही. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.